سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں میں رفیع الدین رفیق آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں خلد آباد کی درگاہیں قسط 7ویں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم آپ کی خدمت میں خلد آباد کی درگاہوں سے متعلق 6 قسطیں پیش کر چکے ہیں۔ ان ویڈیوز کو کافی پسند کیا گیا، اس کے مد نظر آج ہم کاشانی برادران رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں اور ان کی خانقاہ اور ان کی درگاہ سے متعلق معلومات پیش کریں گے۔ سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں روحانی شہر خلد آباد سے میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جو گنبد آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ برہان الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت اسد الاولیاء والعارفین خواجہ سلطان شیخ برہان الدین اولیاء کے یہ مرید تھے۔ کاشانی برادران کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ عماد الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند برہان الدین کاشانی، رکن الدین کاشانی، حماد الدین کاشانی، مجد الدین کاشانی اور ان تمام کاشانی برادران کی والدہ برہان غریب سے بیعت تھی۔ برہان غریب رحمۃ اللہ علیہ آپ تمام بھائیوں کو اپنے حقیقی بھائی کی طرح تصور کرتے تھے، اور کاشانی برادران نے جو خدمات انجام دی خلد آباد آج اگر حقیقتاً کتابوں میں ہیں تو وہ انہی کاشانی برادران کی محنت اور انہی کے وجہ سے ہے۔ حضرت رکن الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے نفائس الانفاس اور جو ہے مجد الدین کاشانی اور حماد الدین کاشانی نے احسن الاقوال، اس طریقے سے ان تینوں برادران نے 1 درجن سے زائد کتابیں تصوف اور حضرت برہان غریب کے ملفوظات پر مبنی تحریر کی۔ آج ہم انہی برادران کے بارے میں یا ان کے مزارات کی آپ کو زیارت کرائیں گے۔ چلتے ہیں کاشانی برادران کے مزارات کی طرف۔ یہ جو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں، اس گنبد میں برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت برہان الدین کاشانی ابن عماد الدین کاشانی دفن ہے۔ حوض خاص سے قریب اور خانقاہ اسد الاولیاء والعارفین خواجہ سلطان شیخ برہان الدین کی جنوبی جانب یہ گنبد، اور اس گنبد کے صحن میں کمانوں میں حضرت رکن الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجد الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان تمام بھائیوں کی والدہ محترمہ کا مزار ہے۔ حضرت برہان الدین کاشانی کا انتقال حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے دن ہوا۔ آپ کی تدفین یہاں جس جگہ یہ گنبد بنا ہے عمل میں آئی اور اس پر گنبد بنا دیا گیا، لیکن گنبد پر جو تختی یا بورڈ لگا ہوا ہے وہ معلومات کی کمی کے باعث رکن الدین کاشانی کا لگا دیا ہے کسی نے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تبدیل کر کے اس پر برہان الدین کاشانی والا بورڈ گنبد پر لگایا جائے۔ برہان الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کا نوجوانی کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ 13 صفر 737 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ کاشانی برادران نے جو خدمات انجام دی تصوف اور خانوادہ چشتیہ میں وہ قابل قدر ہے۔ 1 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف، مؤلف، مرتب رہے کاشانی برادران۔ برہان الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسی معلومات نہیں ملی کہ آپ کا کوئی تصنیفی کارنامہ یا تحریری کارنامہ ہو، لیکن آپ برہان الدین غریب کے بہت قریب تھے، یہی کافی ہے۔ اور آپ کا وصال بھی اسی دن ہوا جس روز برہان الدین غریب نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ کاشانی برادران کو خلد آباد میں بھی کافی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے عرس کا اہتمام بھی درگاہ کمیٹی کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم آپ کو باہر جو رکن الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ہے وہاں لیے چلتے ہیں۔ یہ حضرت رکن الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے۔
हजरत रुकनुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत बुरहानुद्दीन गरीब के मुरीद और हजरत ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। आप ही के वसीले से या आप ही जरिया बने थे हजरत बुरहान गरीब की मजलिस में ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह को ले आने का। वाकया ये था कि आप दौलताबाद इल्म हासिल करने के लिए जाते थे और उसी दौरान एक बहस हुई। बहस के बाद आपसे ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि बता तेरा पीर बेहतर है या मैं। आपने कहा पहले तो काफी जो है तो आपने परहेज किया इस बात को वाजे करने के, लेकिन जब मामला पीर का आया तो आपने कहा कि आप तो मेरे उस्ताद हैं लेकिन मेरे पीर भी कुछ कम नहीं। ये सुनते ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वो सवालात आपकी खिदमत में पेश कर दिए और कहा कि जा और इनके जवाबात अपने पीर से ले आ। जैसे ही आप खानकाह में पहुंचे रुकनुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त वजू कर रहे थे। आपने जब अपने शागिर्द रशीद की हालत देखी पूछा कि क्या बात है रुकनुद्दीन काशानी ने तमाम वाकया बताया। आपने कहा कि ये सारे सवालात देखे और कहा कि ये वहां खानकाह में रख दो और जो मैंने कुछ लिख रखा है वो ले जाकर ज़ैनुद्दीन शिराजी को दे दो। जैसे ही ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने वो जवाबात पढ़े जो रुकनुद्दीन काशानी ले गए थे, आपकी काया पलट हो गई। आप रोने लगे और कहा कि मुझे बुरहानुद्दीन गरीब की खिदमत में ले चलो। और बुरहानुद्दीन गरीब की खिदमत में आकर आपने बुरहानुद्दीन गरीब के हाथ पर बैत कर दी। तो यही वो रुकनुद्दीन काशानी थे जो जरिया बने ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह को खानवादे चिश्तिया में ले आने का। आपने नफ़ाइसुल अनफास नामी बुरहानुद्दीन गरीब के मलफूजात लिखे। इसके अलावा बेशुमार किताबें हजरत रुकनुद्दीन काशानी ने लिखी जो आज भी बुरहानुद्दीन गरीब की खानकाह की अक्कासी करती है। ये उन्हीं बुजुर्ग का मज़ार मुबारक है। दूसरी मज़ार हजरत के भाई मुजद्दुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह का है। सितम ज़रफ़ी देखिए कि जिन लोगों ने खानवादे बुरहान गरीब और चिश्तिया सिलसिले की इतनी खिदमत की उनके मज़ारात की एक हालत है। इस जानिब दरगाह कमेटी खुद्दामीन हद कला को तवज्जो देना चाहिए कि कम से कम इन बुजुर्गों के मज़ारात को दुरुस्त किया जा सके। मुजद्दुद्दीन काशानी भी अपने दीगर भाइयों की तरह इल्म और फضل में बहुत अहमियत रखते थे। आपने भी हजरत बुरहान गरीब की अकीदत में एक किताब बक़ायतुल ग़राइब लिखी। ग़राइबुल करामात की भी आप मुसन्निफ है। ये हजरत मुजद्दुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। इनके एक भाई हम्मादुद्दीन काशानी रहमतुल्लाह अलैह सगर गुलबर्गा में मदफन है जिन्होंने अहसनुल अक़वाल नामी किताब लिखी। ये और एक मज़ार है जो हजरत काशानी बिरादरान रुकनुद्दीन काशानी, हम्मादुद्दीन काशानी, मुजद्दुद्दीन काशानी और बुरहानुद्दीन काशानी की वालिदा मोहतरमा का है। वालिदा माजिदा को बुरहान गरीब बहुत इज्जत और एहतराम की नजर से देखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के बच्चों को बुरहान गरीब रहमतुल्लाह अलैह काशानी बिरादरान को कहते थे कि मैं तुम्हारा 5वां भाई हूँ। ये हालत देखिए इन मज़ारात के। ये पूरा इलाका है हजरत काशानी बिरादरान के मज़ारात के पास का। ये वह कदीम मस्जिद है जो तुगलक दौर में बनाई गई थी। इसके बाजू में हौज़ खास है। यहाँ पर और भी मज़ारात है। ये एक मज़ार है जो रशीदुद्दीन साहब का मज़ार कहा जाता है, जिसे या एक गुमान यह है कि रशीदुद्दीन साहब का मज़ार है चबूतरे पर बाहर। बड़ी अच्छी देखभाल चंद लोग मुखलिस जो अकीदत रखते हैं काशानी बिरादरान से, ये बड़ी अच्छी देखभाल करते हैं। यहीं पर मगरिबी जानिब एक स्कूल चलता है जो बुरहानुद्दीन गरीब के नाम से हाई स्कूल है, जिसे एस एजुकेशन सोसाइटी चलाती है। मलफूजात की किताबों और दीगर किताबों में रशीदुद्दीन साहब का नाम भी बार बार लिया जाता है। इस रशीदुद्दीन साहब के मज़ार के बारे में कहा जाता है कि हौज़ खास में है और यही वो मज़ार है जो पुख्ता बना हुआ है और यही रशीदुद्दीन साहब का मज़ार है जो बुरहानुद्दीन औलिया गरीब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदैन में से थे।
ये काशानी बिरादरान के मज़ारात की जुनूबी जानिब का हिस्सा है हौज़ खास का। हौज़ खास यानी खास तालाब, या वो खास तालाब जिसमें गुम्बदों का पानी बहकर आता था, इसीलिए इसे हौज़ खास कहा जाता है। दौरे तुगलक में इस हौज़ खास की तामीर हुई। दौरे तुगलक में बनने वाले तालाबों को हौज़ कहा जाता है, जैसे हौज़ कुतलक, हौज़ जंबूल, कागजीपुरा, हौज़ नीलम, हौज़ शानूर, हौज़ कुतलक और ये हौज़ खास। और इसके अलावा हौज़ पांगरा भी बनाया गया था जो खुल्दाबाद ही में है। इस चबूतरे पर जो आप चबूतरा देख रहे हैं, बुरहान गरीब की नानी यानी जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा और बुरहानुद्दीन गरीब की मुमानी के मज़ारात है। इन मज़ारात को नानी मुमानी के मज़ारात कहते हैं। वक्त की सितम ज़रफ़ी देखिए कि चबूतरे पर बड़ा सा दरख्त आ चुका है और घास भी काफ़ी कुछ है। तारीख से जो कौमें खिलवाड़ करती है, उन्हें तारीख कभी माफ़ नहीं करती। ये जो गुंबद आप देख रहे हैं हज़रत लुत्फ़ुल्लाह साहब का है ये, और काफ़ी खूबसूरत गुंबद है ये। इसका तर्ज तामीर मलिक अंबर के गुंबद की तरह है। और यहीं पर ये बुरहानुद्दीन गरीब के खानखा के जुनूबी जानिब का हिस्सा है। और इस गुंबद के शुमाली जानिब बुरहानुद्दीन गरीब का लंगर खाना है। ये क़दीम दौर तुगलक की मस्जिद 3 कमानों और 1 दर्जे की ये मस्जिद छोटी है लेकिन पूरी पत्थरों में तामीर है। और करीब ही हौज़ खास तालाब है। बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के छत से हम ये मंज़र अपने कैमरे के ज़रिए आपको बता रहे हैं। बुरहानुद्दीन काशानी का गुंबद, लुत्फ़ुल्लाह बेग साहब का गुंबद, हज़रत नानी मुमानी के मज़ारात, हौज़ ख़ास का मंज़र, दौरे तुगलक की तामीर करदा मस्जिद, ये तमाम मंज़र, और ये बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह का जुनूबी दरवाज़ा, बुरहान गरीब रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह का वो लंगर खाना जहाँ पर लंगर पकता था और बाद में खानकाह में तक़सीम होता था। खानकाह में आसपास के बेसहारा और मजबूर अफराद भी तशरीफ़ लाते और लंगर से फैज़याब होते थे। ये लंगर जो खानकाही निज़ाम में काफ़ी अहमियत का हामिल है। सूफ़ी उज़्ज़ाम सबसे पहले जिस चीज़ पर ज़ोर देते थे वो ये था कि भूखों को खाना खिलाओ। और इस लंगर को बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने, जो हज़रत बुरहान गरीब के दादा पीर थे, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के पीर व मुर्शद, फिर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने भी इस लंगर को का जारी रखा। बुरहानुद्दीन गरीब तो लंगर खाने के ज़िम्मेदार थे। मतबख के लंगर पकाना और खिलाना बुरहानुद्दीन गरीब की ही ज़िम्मेदारी थी। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह दिल्ली में जब आप दक्कन तशरीफ़ लाए तो इस लंगर को जारी रखा। ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने तज़किरा किया कि आप लंगर क्यों नहीं जारी करते, तो उन्होंने कहा था मेरे पीर का लंगर जारी है। बेशुमार भूखों प्यासों को का ज़रिया था ये लंगर खाना इस बात की याद ताज़ा करता है। और ये जो लंगर खाने के सामने ये जो मज़ार है, ये है मोहम्मद लश्करी रहमतुल्लाह अलैह का, जो बुरहानुद्दीन गरीब के मुरीदैन में से हैं, मुरीद थे ये। और आपके को काफ़ी अहमियत और क़द्र की निगाह से देखा जाता था मोहम्मद लश्करी रहमतुल्लाह अलैह को खानकाह बुरहान गरीब में। मलफूज़ात में भी आपका तज़किरा है। लंगर खाने के सामने की जो दाहलान है उसी में आपका ये मज़ार मुबारक है। ये थी तफसीली मालूमात बुरहानुद्दीन गरीब की खानकाह से बाहर मतफ़न बुज़ुर्गों की।
اب ہم آپ اس سے اجازت چاہتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ پھر ملاقات ہوگی.